Hello guys, so let's crack all ninth and 10th CBSE exams with us, along with top educators, quality content, great learning experience. Let's crack ninth and 10th. I'm your educator Shubhangi Sankadhar and I have done BCA, MCA with honors, MTech with honors. I'm having 5+ years of teaching experience. I'm author of various research papers. I have filed 2 patents. I'm passionate to teach and adapt new technologies. You can join our Telegram channel to get more information and updates. This is the link to join our Telegram channel. You can search the content for CBSE 9th and 10th. To download the Unacademy Learning app on your mobile, you go to your Play Store, you write there Unacademy Learning app. Then click on the install. Once the app has been installed, you go to the Manage Goals sections. And under that Manage Goals section, what you can select is you can select your class. Like if you are in 9th class, you can go for 9th, as well as you can opt for 10th class if you want a 2 years program, because after 9th you have to go to 10th, of course, right? So you can select the category in which you want to get enrolled, or in which you want to study. Then you go to the special classes. So to unlock free content, you can use my code, that is Shubh001. So you can use my code Shubh001, and to put on the code, follow these steps. Search the Unacademy Learning app in Google Play Store and download. Log in the app and select Goal. Select the menu button on the top left corner and select Special. Enter the invite code, and my invite code is Shubh001 to unlock your free plan. So today we are going to discuss computer network. What actually a computer network is. This is your unit 1, right? And for your syllabus, I am going to discuss the entire syllabus of class 10 in a proper manner. So before going towards computer network, let's discuss the term network. What actually a network is? Network होता क्या है? तो सपोज हम बात करते हैं किसी, सपोज रोड नेटवर्क की बात करते हैं. आप लोगों ने सुना होगा ना, रोड नेटवर्क बहुत वास्ट है. So if I'm talking about a road network, or I'm living here in city A, if I'm saying I'm living here in Delhi and I want to go to Ghaziabad, right? And there may be multiple routes. We can go from Delhi to Ghaziabad via Noida. We can go directly without, by having a DND pass way, and there can be a number of routes that connects Delhi to Ghaziabad. Okay, so there can be more cities, like Delhi is connected to Gurugram, and there may be multiple ways from Gurugram towards Delhi, or from Delhi towards Gurugram. So this is what, these are the cities: Delhi, Gurugram, and Ghaziabad, and they are connected via a road. तो certain destinations, है ना, certain destinations are connected via a link or a road is known as a road network. तो नेटवर्क क्या हुआ, जहाँ पे हमें कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन दी है, उस डेस्टिनेशन को हम लिंक कर पा रहे हैं किसी चैनल के थ्रू. यहाँ पे वो चैनल क्या है, रोड. तो दिस इज अ रोड नेटवर्क. Moreover, if I'm saying कि, for example, I'm talking about a social network. ठीक है, you might be heard about FB, you might have heard about Instagram. सुना होगा ना, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सुना क्या कहना मैम, दिन भर यही तो यूज करते रहते हैं.
सो सोशल नेटवर्किंग में आपके पास एक अकाउंट है फेसबुक का, आपके फ्रेंड्स के पास भी अकाउंट होगा फेसबुक का, आपके कोई कजिन है जो सपोज यूएस में रहते हैं, आप यहाँ गाजियाबाद में रहते हैं, कोई आपका फ्रेंड है जो यूके में रहता है, देयर इज समवन हु लिव इन दिल्ली, राइट। तो बेसिकली एक कोई मुंबई में रहता है, एंड विदाउट एनी बैरियर आप सब फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो, एवरी वन कैन कनेक्ट थ्रू अ फेसबुक। तो यहाँ क्या है, देर आर सर्टेन पीपल एंड वो उनका कम्युनिकेशन लिंक क्या है, फेसबुक, दे आर कनेक्टेड ऑन फेसबुक। तो दिस इज अ सोशल नेटवर्क। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सी सेम स्ट्रक्चर ही आ रहा है। यहाँ पर हमने पीपल कनेक्ट किए हैं थ्रू अ सम चैनल, और यहाँ पर हमने क्या देखा है, हमने सिटीज कनेक्ट की हैं थ्रू सम चैनल। तो नेटवर्क इज वी आर कनेक्टिंग सर्टेन थिंग्स through a proper channel. This is a network, right? तो we talk about computer network. अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये हम आगे चल के देखते हैं। See, if we go towards a formal definition, so let's first study the formal definition. A computer network is a set of devices, right? Is a set of devices जिनको हम नोड्स भी कैसे कहते हैं, कनेक्टेड बाय सम कम्युनिकेशन लिंक। तो बहुत सिंपल सी बात है, डिवाइसेस क्यों बोला है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नेटवर्क में केवल कंप्यूटर्स ही होंगे, लैपटॉप्स ही होंगे, टैबलेट्स, है ना। तो वी कैन हैव अ कंप्यूटर ऑल्सो, वी कैन हैव अ टैबलेट ऑल्सो, हम टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, है ना, हमारे पास एक टैबलेट भी हो सकता है। We can have a mobile also, right? We can use a mobile also there. So basically what we have, a mobile, we have a system, we can have more systems, multiple devices, और ये सारी हमारी कनेक्ट होंगी, ठीक है, ये आपस में सब कनेक्ट हो सकती हैं। तो हमने क्या बोला, सेट ऑफ डिवाइसेस हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो डिवाइसेस हैं दे आर आल्सो नोन एज नोड्स। नोड, दिस इज अ नोड, सपोज ये नोड ए है, ये नोड बी हो गई, नाम है ये ए बी सी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ नोड, ये भी नोड है। और ये है हमारी कम्युनिकेशन लिंक। अब हम इसको कम्युनिकेशन लिंक क्यों बोल रहे हैं, सी कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स वेयर यू कैन सेंड एंड वेयर यू कैन रिसीव द मैसेजेस, तो दैट इज नोन एज योर कम्युनिकेशन। तो मतलब बी सी को मैसेज भेज सकता है, सी बी को मैसेज भी भेज सकता है। तो मतलब if both are sending and receiving messages to each other, that is your communication, right? तो a node can be a computer हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, या फिर कोई भी और डिवाइस हो सकती है जो सेंडिंग और रिसीविंग डेटा के लिए कैपेबल होगी, ठीक है। जो जो डिवाइस है वो डेटा सेंड भी कर सकती है, डेटा रिसीव भी कर सकती है, अगर इसमें वो कैपेबिलिटी है नेटवर्क के, तो वो क्या हो जाती है, नेटवर्क की एक डिवाइस हो सकती है, ठीक है। नाउ सी आई एम रेफरिंग टू दिस फिगर, यहाँ पे हमारा दिस इज अ मॉडेम जहाँ से हमारा क्या आता है, इंटरनेट आता है। अब वर्ल्ड की कोई भी लोकेशन है, चाहे वो एशिया हो गया, वेदर इट बी अफ्रीका, ठीक है, वेदर इट बी यू नो एनी कॉन्टिनेंट, यूके, कहीं का भी आप ले लेते हो, वहां से मैसेज ट्रेवल होकर आया, इट कैन रीच टू योर tab also, it can reach to your mobile device also, it can reach to your laptop also, तो वो multiple places पर आपका मैसेज रीच आउट हो सकता है। तो दिस इज योर कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ अगर एग्जामिनेशन आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का, तो व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम आर यू गोना मेक, राइट, किस तरीके का डायग्राम आप बनाओगे, बिकॉज सी यू आर इन क्लास 10th, ठीक है, तो 10th क्लास में क्या होता है, डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन मार्क्स।
तो हमारा नेटवर्किंग का जो डायग्राम है वो किस तरीके से ड्रॉ होगा. वी हैव अवर कंप्यूटर्स, देयर कैन बी मल्टीपल कंप्यूटर्स, आप कितने भी बना सकते हो. हम एक डेमो बना रहे हैं तो लेट्स मेक अ set of 4 computers. Every computer is connected to every other computer. हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होगा. This is A, this is B, this is C, this is D, and this is showing what? This is showing your computer network. It is a network that is connecting two or more than 2 computers. और ये जो लाइन जो कनेक्ट कर रही है इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन लिंक. दिस इज ऑल्सो योर कम्युनिकेशन लिंक. ठीक है, ये भी आपका कम्युनिकेशन लिंक है. दिस इज ऑल्सो योर कम्युनिकेशन, अब दिस एंटायर इज योर कम्युनिकेशन लिंक. ठीक है, सिमिलरली ये भी आपका कम्युनिकेशन लिंक है. दिस इज ऑल्सो योर कम्युनिकेशन लिंक एंड दिस इज ऑल्सो योर कम्युनिकेशन लिंक. ठीक है, तो कम्युनिकेशन लिंक का मतलब क्या होता है? दैट इज एबल टू सेंड द डेटा एज वेल एज रिसीव द इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये दोनों काम जो कर सकता है दैट इज योर कम्युनिकेशन लिंक, राइट. सो बेसिकली हम आते हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. नाउ वील डिस्कस व्हाट, कि नेटवर्किंग क्या है. नेटवर्किंग एक्चुअली क्या होती है? तो नेटवर्किंग एक प्रोसेस होता है ऑफ कम्युनिकेशन. सी, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बहुत सिंपल से टर्म्स में, तो नेटवर्क इज व्हाट? व्हेन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर. बस हमारे पास डिवाइसेस हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं अगर, तो दैट इज व्हाट? योर कंप्यूटर, दैट इज योर कंप्यूटर नेटवर्क्स. पर अगर वो डिवाइसेस एक दूसरे से बात करने में भी कैपेबल हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने में भी कैपेबल हैं, लाइक ए कैन सेंड अ मैसेज टू बी और बी कैन सेंड अ मैसेज टू ए. ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन ए एंड बी इज नोन एज योर networking. So it is a process of communication between two or more remote parties. remote मतलब क्या? कि एक अगर इस लोकेशन पर है, दूसरी किसी और लोकेशन पर भी हो सकती है. ठीक है, एक अगर कश्मीर में है तो एक कहाँ हो सकती है? कन्याकुमारी. तो कश्मीर टू कन्याकुमारी there can be communication, right? It involves the connection of computers, media and networking devices. So this is actually what our networking is. Difference is कंप्यूटर नेटवर्क है, वो नेटवर्क एक स्टेब्लिश करता है, मतलब नेटवर्क होता है जिसमें हमारे कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. नेटवर्किंग है जो प्रोसेस होता है किसका? कम्युनिकेशन का, बिटवीन ए टू बी, बी टू ए और बिटवीन बी टू सी और सी टू ए. जितने भी कंप्यूटर्स हैं अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं देन दैट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज नेटवर्किंग. आई होप ये क्लियर है आपको, कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क, कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड हाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन देम. इस तरीके से ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ते हैं. सिर्फ नेटवर्क की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं? देयर आर एवरी टाइम यू यूज नेटवर्क, तो उस नेटवर्क की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? ये आइकन आपने देखा होगा, यू यूज ईमेल्स. हम ना ईमेल्स ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एंड उसके थ्रू हमारा क्या यूज होता है? दैट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग. ईमेल ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कौन से कंसेप्ट होता है? नेटवर्किंग. वी कैन चैट. देयर आर सर्टेन मैसेंजर एप्स, चैटिंग एप्स. ठीक है, जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया, एफबी हो गया, एफबी मैसेंजर जो होता है. तो दीज आर योर चैटिंग एप्स जो हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास नेटवर्क है तभी. अगर नेटवर्क ही नहीं है तो हाउ कैन माई व्हाट्सएप कनेक्ट टू योर व्हाट्सएप? मेरा जो व्हाट्सएप है वो आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट ही नहीं कर सकता अगर नेटवर्क नहीं है. ठीक है, तो वी कैन चैट ऑल्सो. देन www, कुछ भी अगर हमें सर्च करना हो हम जाएंगे सबसे पहले किस पे जाते हैं? google.com. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? वर्ल्ड वाइड वेब.
वर्ल्ड वाइड वेब हम यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग एप्लीकेशन. वी कैन हैव teleconferencing, we can have video conferencing, we can send and receive. There are multiple applications of mail also. We can have smart watches that can transfer data. यहाँ पे फाइल्स फोल्डर्स जो हम स्टोर करते हैं क्लाउड पे, अगर हमने कोई डेटा स्टोर कर रखा है, क्लाउड इज नॉट दैट वाला क्लाउड, बादल वाला क्लाउड नहीं है. ये कौन सा क्लाउड है? ये डेटाबेस वाला क्लाउड है. नाउ व्हाट इज दिस न्यू टर्म? आई गेस यू माइट हैव हर्ड क्लाउड, बट अगर हम बात करें तो क्या होता है क्लाउड, इसको एक बार हम देख लेते हैं. क्लाउड डेटाबेस को क्या कर होता है ये. सी, आई एम हैविंग certain photos on my phone. I have clicked various photos और मेरे पास लगभग हर दिन मैं 50 फोटोज क्लिक करती हूँ. गर्ल्स माइट बी सेइंग मैम 50 फोटोज ओनली, तो बहुत कम है, मैं तो और ज़्यादा क्लिक कर लेती हूँ. तो सपोज हमने 50 फोटोज क्लिक किया एंड आई एम हैविंग अ कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ फोटोज. एंड सपोज इन ये 1 करोड़ फोटोज को आपको अपने मोबाइल में स्टोर करने के लिए कितना स्टोरेज चाहिए? बहुत ज़्यादा. ठीक है, इतना कि योर फादर विल से नाउ आई एम नॉट गोइंग टू परचेज योर मोबाइल. एवरी टाइम यू आर परचेजिंग अ मोबाइल आप इतने सारा फोटोज क्लिक कर लेती है दैट यू वांट अ न्यू फोन. तो इज दिस अ गुड ऑप्शन? सो गूगल सेड आई एम गिविंग यू गूगल फोटोज. अब गूगल फोटोज क्या है? गूगल फोटोज इज अ क्लाउड स्टोरेज. आपने ये फोटोज लिए और इस पे डाल दिए एंड आपका मोबाइल है फ्री स्टोरेज. देयर इज नो स्टोरेज हेयर बिकॉज सारी जो भी स्टोरेज है वो कहाँ पर चली गई? इस गूगल फोटोज के क्लाउड पे. तो इट इज अ डेटाबेस. ठीक है, जिसको एक्सेस करने के लिए ऑफ कोर्स आपको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होता है. ठीक है, तो गूगल फोटोज के लिए ऑफ कोर्स आपका जीमेल का ही एक्सेस चलता है. सिमिलरली वी हैव गूगल ड्राइव. ये मैं वही आपको क्लाउड मतलब डेटाबेस बता रही हूँ, क्लाउड डेटाबेस जो आप यूजुअली अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, है ना. मोर ओवर एक और चीज आप देखते हो कि देर आर सर्टेन सॉन्ग्स ऐप जो पड़ी होती हैं, सॉन्ग्स की जो एप्लीकेशन, तो वो सॉन्ग्स भी कहीं ना कहीं क्लाउड पे जाके स्टोर होते हैं. तो टुडे देर इज नॉट अ सिचुएशन जहां पर आपको गाने डाउनलोड करके ही सुनने पड़े या मूवी आप डाउनलोड करके देखें. यू कैन सी देम ऑनलाइन. कैसे? बिकॉज वो कहीं ना कहीं जाके क्लाउड में स्टोर होंगे. तो दिस इज हाउ वी एक्सेस डेटाबेस हेयर, राइट. हम मोबाइल में देखते होंगे कितनी सारी हम एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं मोबाइल में. तो मोबाइल ऑल्सो यूज नेटवर्क एप्लीकेशन. हमारे पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन होती हैं, सर्टेन एप्लीकेशन हमारी होती हैं. तो दैट इज ऑल ड्यू टू व्हाट? योर नेटवर्क. तो ये हमारी है नेटवर्क एप्लीकेशंस जो हम आई गेस आप लोगों को सारी क्लियर होंगी. इनफैक्ट और भी कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं. आई हैवन इंक्लूडेड ईच एंड एवरी एप्लीकेशन. तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा. नाउ वेयर डू वी यूज अवर कंप्यूटर नेटवर्क? हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? तो लाइक समवन आस्क यू like how do you use computer network and how do you use it? You say of course I use WhatsApp, yeah, and I use Instagram, Twitter. I have a Twitter handler as well. So people will say ki, oh, I got, you're not a tech guy, right? You have no idea about technicalities of the things. So for that we are here. I'm going to teach you where in the technicality you can tell a person where do you use computer network. We use computer network for resource sharing. We use computer network for information sharing, for communication, for remote computing, for distributed processing, for interactive gaming. सो वन बाय वन लेट्स सी कि ये चीज़ें जो नाम मैंने इतने कॉम्प्लिकेटेड से लिखे हैं ये एक्चुअल में होते क्या हैं, है ना. अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ आई नो आई यूज कंप्यूटर नेटवर्क एंड रिसोर्स शेयरिंग, देन ही इज गोना आस्क कि व्हाट रिसोर्स शेयरिंग इज. तो क्या बोलोगे? ये तो नहीं पढ़ाया गया था, वो अकेडमी वाला जो लेक्चर चल रहा था उसमें रिसोर्स शेयरिंग तो बताया नहीं था शुभांगी हमने. तो इसी वजह से हम रिसोर्स शेयरिंग भी डिस्कस कर लेते हैं
इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी डिस्कस कर लेते हैं, एवरी पॉइंट. सो लेट्स गो वन बाय वन. रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है? ठीक है, तो रिसोर्स शेयरिंग से पहले आपको रिसोर्स का मतलब पता होना चाहिए. व्हाट एक्चुअली अ रिसोर्स इज. ठीक है, रिसोर्स मतलब क्या होता है? कोई ऐसा चीज जिसको आप अपने किसी टास्क के लिए यूटिलाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ कंपनी. ठीक है, तो मेरे पास एक कंपनी है एंड उस कंपनी पे देर आर मे बी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो बनाते होंगे लोग, है ना. प्रोजेक्ट्स आते हैं कई सारे, तो हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन लोग चाहिए होंगे? एक तो हमें इंसान चाहिए होंगे जो उस प्रोजेक्ट का कोड कर पाए, उसको डेवलप कर पाए. ठीक है, तो दीज आर व्हाट योर ह्यूमन रिसोर्सेज. These are your human resources. So this is also these are also what your resources. Then we might be having multiple systems. Systems होंगे, तो ये क्या होंगे आपके? हार्डवेयर रिसोर्सेज. राइट, अब हमारे पास कई सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होंगी. ठीक है, तो देर माइट बी सर्टन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जैसे वर्ड हो गया. राइट, इसके अलावा हमारे पास गूगल मीट हो गया जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हो. देन वी हैव टीम्स एज वेल. तो ये क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो कंपनी यूज करती है वाइल मेकिंग अ प्रोजेक्ट. सो रिसोर्सेज इज कि हमें ये प्रोजेक्ट डेवलप करना है. उस प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स मेरे पास आई, दीज ऑल आर अ रिसोर्सेज. राइट, तो फॉर रिसोर्स शेयरिंग इफ आई एम सेइंग, क्या डेफिनेशन है इसकी? अगर यही रिसोर्स हम शेयर कर रहे हैं, जैसे इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स कैन शेयर ऑल कनेक्टेड रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स. अच्छा, इसके लिए हम कहीं दूर नहीं जाते हैं, हम अपने घर पर ही आते हैं. ठीक है, आपके घर पे प्रिंटर होगा. ठीक है, नाउ इफ यू आर हैविंग अ प्रिंटर एट योर होम, so and you might be having a device with you. एक आपकी डिवाइस होगी, एक आपके फादर के पास डिवाइस होगी, एक आपकी मदर के पास डिवाइस होगी, आपके सिबलिंग्स होंगे, उनकी डिवाइसेस होंगी. तो क्या हर इंसान को अगर प्रिंट लेना है तो वो अपना सेपरेट प्रिंटर रखेगा? इज दैट सो? Is it feasible? Like, I am having 5 people in my home and these 5 people will need 5 printers. This is very much expensive solution. Right, what I'll do, I'll have only one printer. मुझे 5 printer की जरूरत नहीं है. And printer is what? Printer is my resource. तो मैं ये प्रिंटर शेयर करूंगी सबके साथ. With me, with my father, mother, siblings, all will share this common printer. सब इसी से प्रिंट आउट निकालेंगे. ठीक है, तो दिस इज योर रिसोर्स शेयरिंग. हेयर व्हाट यू आर शेयरिंग एज अ रिसोर्स, यू आर शेयरिंग प्रिंटर एज अ रिसोर्स. तो बेसिकली हम कंप्यूटर्स की टर्म में बात करें, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेटवर्किंग के टर्म्स में either we have a hardware resources or we have software resources. So if we talk about hardware resources, we have printers. Similarly हमारे पास scanners होते हैं, मॉडेम्स होते हैं. तो मॉडेम्स भी अगर होते हैं, हम नेट अगर चलाते हैं अपने घर पर, तो हम कैसे चलाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक इंसान को अपना एक अलग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना होगा. तो आई एम हैविंग माई, लाइक आई एम यूजिंग दिस मॉडेम, है ना. अगर इसका की किसी और के पास है तो दैट पर्सन कैन एक्सेस दैट मॉडेम. ठीक है, सिमिलरली डिस्क को हम शेयर कर सकते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए प्रोसेसर्स हम शेयर कर सकते हैं. ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके एप्लीकेशंस जो हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को भी हम शेयर कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा, कुछ अगर सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया होगा तो उसमें मेंशन्ड होता होगा ये 2 यूजर्स आप यूज कर सकते हो. दिस इज फॉर 4 यूजर्स. राइट, दिस इज फॉर सिंगल यूजर. सिंगल यूजर वाला इज नॉट शेयरिंग, बट ये सारे क्या है? दिस इज यू आर शेयरिंग योर सॉफ्टवेयर. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने देखा होगा, जब आता है तो वो कई बार 2 डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल हो जाता है, कई बार 3 डिवाइसेस पे हम उसको अलाउ कर सकते हैं. तो दिस इज योर रिसोर्स शेयरिंग. क्लियर है आई गेस रिसोर्स शेयरिंग सबको?
कुछ नहीं है, बस रिसोर्स है जिसको हम शेयर कर रहे हैं, एंड रिसोर्स कैन बी योर हार्डवेयर रिसोर्स एज वेल एज योर सॉफ्टवेयर रिसोर्स। नाउ कम्स टू इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अभी हम बात कर रहे थे ऑफ सर्टेन डिवाइसेस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस्ड डेटा। डेटा हमारा जो प्रोसेस फॉर्म में है उसको हम शेयर कर रहे हैं। क्यों शेयर करना पड़ता है, कैसे शेयर करना पड़ता है, इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे एक कंपनी है काफी बड़ी सी, ठीक है, उसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह पे हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, एंड जो मेन ब्रांच है वो हमारी कहाँ पर है? सपोज वो मान लेते हैं हमारी यूएस में, ठीक है। तो इसका जो मेन सर्वर होगा या मेन जो डेटाबेस मान लेते हैं, जो मेन डेटाबेस होगा वो हमारा होगा यूएस में, राइट। एंड नाउ द पीपल ऑफ दिल्ली आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट। वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको कुछ डेटा चाहिए जो कि स्टोर है यहाँ पर। तो क्या वो फ्लाइट बुक करेगा और यहाँ जाएगा डेटाबेस लेने, फिर वापस लेकर आएगा? दैट वुड कॉस्ट लैक्स। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, दिस इज नॉट फीजिबल। हम क्या करेंगे? हमने इंफॉर्मेशन शेयर करने, नेटवर्किंग यूज करेंगे और इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हम यहाँ से डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम यहाँ से फाइल्स शेयर कर सकते हैं, हम सर्चिंग जो हम करते हैं, हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, याहू पर कुछ सर्च करते हैं, कोई भी वर्ल्ड वाइड वेब पे हम इंटायरली कुछ भी सर्च करते हैं। वो भी जरूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ गूगल पे डाला है कोई टर्म तो ये पड़ोसी के घर से वो टर्म्स फेच होके आ रही है। वो सर्वर कहीं भी हो सकता है, इन एंटायर कंट्री, इन द एंटायर वर्ल्ड वो सर्वर कहीं भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, आप उस सर्च कैपेबिलिटी भी तभी पॉसिबल है, मतलब दैट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ रही है जब हम देखते हैं कि हम कहीं भी पूरे वर्ल्ड में हम सर्च कर सकते हैं, डेटा कहीं से भी कहीं तक आ सकता है। तो यू आर हैविंग योर फाइल शेयरिंग वेयर यू कैन शेयर योर फाइल्स, राइट। तो उसके लिए कंप्यूटर्स कनेक्टेड होने चाहिए। हम डेटाबेस कहीं पर भी स्टोर हो उसको हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हम सर्चिंग कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज, जहां पर हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, राइट। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन इज द थिंग जो सबसे ज्यादा आपने यूज कर रखी है ना। कम्युनिकेशन कहोगे मैम सबसे ज्यादा नहीं, यही यूज कर रखी है हमने, कम्युनिकेशन ही तो यूज करा है नेटवर्किंग में। कैसे? ईमेल, हम ईमेल भेज सकते हैं। इफ हेयर इज अ सिस्टम, ठीक है, यूजर ए है और एक सिस्टम है यूजर बी के पास, तो दे कैन सेंड मेल फ्रॉम हेयर टू हेयर ऑल्सो। एंड ऐसा नहीं है कि जो रिसीव कर सकता है मेल वो सेंड नहीं कर सकता, ये भी इसको मेल सेंड कर सकता है। जैसे आपके पास स्कूल से असाइनमेंट आता है, ठीक है, और आप उसका सोल्यूशन करके सबमिट करते हो, तो दैट कैन बी डन वाया ईमेल्स, राइट। मैसेज ब्रॉडकास्ट, जैसे व्हाट्सएप अगर यूज करते होगे तो व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है कभी किसी ने? तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है, उसमें आप मैसेज करेंगे एंड दैट मैसेज इज कैपेबल टू रीच सर्टेन पीपल, ठीक है। तो उन लोगों को तो लगेगा आपने केवल उन्हें ही मैसेज किया है, पर एक्चुअल में आपने एक ही क्लिक किया और वो सबको मैसेज एक बार में चला गया, एंड दैट वुड बी रिसीव्ड इन द प्राइवेट चैट बॉक्स। तो ये आपका मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है। देन वी हैव व्हाट्सएप, हम नॉर्मल मैसेंजर यूज करते हैं, हम फेसबुक मैसेंजर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें हम ईमेल, मैसेजेस, ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप, मोर मैसेंजर्स, राइट। वी कैन यूज मल्टीपल फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ऑफ वे, कम्युनिकेशन क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। हम इसमें कई तरीके की चीजें ट्रांसफर कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफर फाइल्स, इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो।
तो हम सर्टेन चीजें हम ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज योर कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, अगर सपोज कम्युनिकेशन को अगर हम जनरल लाइफ में कंपेयर सर्च करते हैं, तो व्हाट अ कम्युनिकेशन इज, ही सेइंग हाय, सेइंग हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसको क्वेश्चन किया, इसने इसको आंसर किया। हम सपोज कि मेरे पास दो लोग हैं, ठीक है, ही सेइंग हाय, नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाय, नॉट रिस्पॉन्डिंग, हेलो, नॉट रिस्पॉन्डिंग। इज दिस अ कम्युनिकेशन? नो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है इसको मैसेज रिसीव हो भी रहा है नहीं हो रहा है। मे बी ही कांट हेयर, मे बी ही कांट कैपेबल टू हेयर यू, कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से वो आपका मैसेज नहीं सुन पा रहा। तो मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन इज वेयर यू कैन सेंड द मैसेज एज वेल, यू कैन रिसीव द मैसेज। जो दोनों काम आपके हो सके वहां पे हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ कम्युनिकेशन। देन कम्स टू रिमोट कंप्यूटिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। रिमोट कंप्यूटिंग हमारा बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। क्या होता है इसको एक बार देखते हैं। सी आई एम having a computer and I am here, मेरा कंप्यूटर है किसी सपोज HP ब्रांड का मेरा कंप्यूटर है, एंड इस कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम अराइज होने लगी है। ठीक है, आई एम फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम इन दिस कंप्यूटर। मैं क्या करूंगी, HP कस्टमर केयर पे कॉल करूंगी, राइट। एंड सपोज आई एम हेयर इन इंडिया, और जहां मेरा कॉल कनेक्ट हुआ है दैट इज योर UK। यहाँ पे कोई एक इंसान होगा जिसने कम्युनिकेशन लिया होगा, ही माइट बी हैविंग अ लैपटॉप। तो वो क्या करेगा, ही इज हैविंग द कैपेबिलिटी, वो मेरे सिस्टम को रिमोट पे ले लेगा, एंड ही इज एबल टू एक्सेस, दिस पर्सन इज एबल टू एक्सेस माई सिस्टम, ही इज एबल टू एक्सेस माई फाइल्स। ठीक है, मेरा डेटा सारा कुछ वो एक्सेस कर पाएगा। दिस पर्सन सिटिंग ओवर UK कैन एक्सेस माई सिस्टम फ्रॉम देयर, एंड वेयर आई एम इन इंडिया। तो इसको क्या बोलते हैं, हमने रिमोट कंप्यूटिंग किया है। तो यूज एनी कंप्यूटर फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। ठीक है, हम किसी भी कंप्यूटर को कहीं से भी अगर एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, ऑन द नेटवर्क, दैट इज नोन एज योर रिमोट कंप्यूटिंग। सो यूजर्स कैन एक्सेस व्हाट, यूजर्स कैन एक्सेस फाइल्स, सॉफ्टवेयर्स, गेम्स, सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं ऑन द नेटवर्क। सो इज इट गुड और बैड? दिस इज गुड अगर मेरी प्रॉब्लम यहाँ से बैठे बैठे सॉल्व हो रही है, मैं घर पर बैठा हूँ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, and I do not have to go anywhere. But if there is a person whose intentions are wrong, कोई इंट्रूडर है जिसके इंटेंशंस ही रॉन्ग है, एंड वो किसी भी तरीके से आपके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है, तो ही कैन एक्सेस योर प्राइवेट डेटा, आपके पासवर्ड्स, आपके बैंक पासवर्ड, सब कुछ आप लोग सिस्टम में सेव करते हो। तो दिस प्राइवेट डेटा कैन ऑल्सो बी एक्सेस। तो ऑफ कोर्स इफ it is having a good point, then it is also having a bad point as well. So that depends on your usage, how you're using the computer. Now comes your distributed processing. अब distributed का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, बांट दिया किसी चीज को। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है। मेरे पास एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम आई, ठीक है, एंड आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सो बिकॉज मेरे सिस्टम की सपोज रैम कम है, आई एम हैविंग 2 GB ऑफ रैम, एंड मेरा प्रोसेसर भी इज नॉट ऑफ दैट कैपेबल। इंटेल कोर मेरा प्रोसेसर है, तो मेरा सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है इस प्रॉब्लम को। देन आई विल यूज टेक द हेल्प ऑफ अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क, और उनको वो प्रॉब्लम को डिवाइड करके उनमें बांट दूंगी। कहूंगी पार्ट ए आप लो, पार्ट बी आप लो, पार्ट सी आप लो, एंड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम,
and you also solve the problem. So I am dividing a larger problem into some smaller problems and making them processed into a network. तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करा एंड देन हमने उसको प्रोसेस किया. तो दिस इज व्हाट a bigger problem can solved by many computers or processors. A heavy software broken into modules and run on several computers. ठीक है, अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं, प्रोसेसिंग क्या होती है, इसको एक बार हम डिटेल्स में समझ लेते हैं. ठीक है, ओके. सो सपोज मैंने आपको एक टास्क दिया और उस टास्क में मैंने क्या बोला कि आई एम गिविंग अ टास्क, यू हैव टू मेक अ कैलकुलेटर. ठीक है, एंड यू हैव टू मेक दिस कैलकुलेटर इन 1 hour. दिस इज असाइनमेंट. अब नाउ व्हाट यू विल से कि आई हैव टू मेक अ कैलकुलेटर इन 1 hour. चलो, व्हाट बेसिक ऑपरेशंस दैट आई कैन ऐड इन द कैलकुलेटर. तो पहले तो आप इसी पे थॉट प्रोसेस लोगे. यू कैन हैव एडिशन, you can have subtraction, you can have multiplication. तो बहुत बेसिक ऑपरेशन है जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे. you can have division, रिमाइंडर भी निकल जाए, है ना. देन आफ्टर स्क्वायर रूट भी परफॉर्म हो जाए. ठीक है, देन आफ्टर स्क्वायर भी परफॉर्म, स्क्वायर ऑफ अ नंबर भी आ जाए, क्यूब रूट भी निकल जाए. बहुत सारे ऑपरेशंस आपने फाइंड आउट किए. ठीक है, तो यू फाइंड इट आउट 1 2. सोचते हैं कि अभी इतना करके देख लेते हैं, बाकी ऑपरेशंस हम बाद में करेंगे क्योंकि 1 घंटे में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो आपने 8 ऑपरेशंस फाइंड आउट किए एंड देन यू फाइंड इट आउट नो 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 आई कांट डू दीज ऑपरेशंस ऑल अलोन. तो आपने क्या किया, इस प्रॉब्लम को डिवाइड करा 8 पार्ट्स में. 7 and 8. एंड आप अपने 8 फ्रेंड्स को कॉल करोगे. पहले फ्रेंड को बोलोगे परफॉर्म एडिशन, एडिशन का प्रोग्राम बनाना है. दूसरे फ्रेंड को बोलोगे सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाना है. थर्ड को बोलोगे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना है आपको. फोर्थ को डिवीजन दे दोगे, इसको रिमाइंडर दे दोगे, इसको स्क्वायर रूट दे दोगे, इसको स्क्वायर दे दोगे और इसको क्यूब रूट दे दोगे. ठीक है, नाउ दे विल डू इट वेरी फास्ट क्योंकि अब एक ही टास्क है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. तो क्या हो गया, काम फास्ट हो गया, इजी हो गया. एंड ये सब बनाकर आपको हैंड ओवर कर देंगे अपना अपना पर्टिकुलर कोड. आप इसको कंबाइन कर लोगे एंड आपका कैलकुलेटर तैयार हो जाएगा. ठीक है, तो जो ये हर एक प्रॉब्लम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुई है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल. दिस इज योर मॉड्यूल 1, दिस इज योर मॉड्यूल 2 3. ठीक है, इस तरीके से कितने टोटल मॉड्यूल्स हैं, 8 मॉड्यूल्स में हमने प्रॉब्लम को डिवाइड किया है. तो मॉड्यूल्स इज व्हाट, व्हेन वी डिवाइड अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू सर्टेन स्मॉलर प्रॉब्लम, तो वो हर एक स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होती है, एक मॉड्यूल होती है. सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क, और डिस्ट्रीब्यूट करके वो प्रोसेस होता है. तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. आई होप ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इंटरैक्टिव गेमिंग. इंटरैक्टिव गेमिंग क्या होती है? इंटरैक्टिव इज समथिंग, see what I will say कि this thing is interactive. Interactive would be something जिसमें आपका दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता रहे. ठीक है, तो इस कोरोना काल में लूडो किंग बहुत चला है ना. लूडो किंग किस किस ने खेला है? आई गेस सभी ने खेला होगा, है ना. तो आई एम सिटिंग हियर, आई एम हैविंग माय सिबलिंग्स देयर, हियर माय फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हियर. ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला इनको, लेट्स इंस्टॉल लूडो किंग एंड यू फोर विल प्ले व्हाट, यू फोर विल गो एंड इंस्टॉल लूडो किंग. और आप चारों उस लूडो किंग को प्ले कर सकते हो. यू विल टेक ग्रीन, रेड, ब्लू एंड येलो. या ठीक है, आपने चारों ने इसको इजिली आप लूडो को प्ले कर सकते हो. एंड आप लोग अलग अलग लोकेशंस पर हो. ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आप लोग कनेक्टेड हो किससे, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू
आप सारे आपस में कनेक्टेड हो, तो यू कैन प्ले गेम्स। भले ही आप कहीं पर हो तो आप ऑनलाइन गेम्स प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पबजी, लूडो किंग, चेस भी इसी तरीके से आप प्ले कर सकते हो। सो दैट इज योर इंटरैक्टिव गेमिंग where if you are at any location you can play the games, right? So I hope जितने भी हमारे uses हैं networking के वो आपको clear होंगे। So एक बार देख recall कर लेते हैं सारे uses को। तो what are the uses? We know we have studied resource sharing, I hope it is clear। information sharing भी हमने पढ़ लिया है, communication भी हमने सीखा, रिमोट कंप्यूटिंग क्या होती है ये भी हमने सीखा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होती है ये भी हमने सीखा, एंड इंटरेक्टिव गेमिंग क्या होती है ये भी हमने सीखा। तो वी हैव लर्न ऑल दीज यूजेस ऑफ व्हाट, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट नेटवर्क की नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, कहाँ इसका यूज है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन एरियाज क्या क्या हो सकते हैं नेटवर्किंग के, व्हाट कैन बी द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ networking। तो before you know taking not much of your time or moving forward towards internet, हम एप्लीकेशन एरियाज अगर नेटवर्किंग के देखते हैं तो पहले तो आपको कुछ भी सोचने से पहले ये देखना होगा कि कौन सी वो जगहें हैं जहां पर हमें नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके रखना पड़ता है। तो पहले बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यही तो होता है कि आपका बैंक आईसीआईसीआई बैंक है सपोज, एक ब्रांच आपकी नोएडा में है, एक ब्रांच आपकी मुंबई में है, एंड एक ब्रांच आपकी पुणे में है। तो ये आपका बैंकिंग सेक्टर आपस में कम्युनिकेटेड है। आपने यहाँ से ट्रांजैक्शन किया तो वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, चाहे आप कल को पुणे चले जाएं वो रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं है 10,000 आपने नोएडा में रह के विड्रॉ कर लिए तो पुणे वाले में जाके आपने फिर से निकाल लिए तो वो 10,000 रहेंगे ही रहेंगे। दैट इज वेयर वी नीड नेटवर्किंग, जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन चाहिए होता है, आपके एजुकेशन इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन चाहिए होता है, आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपका नेटवर्किंग चाहिए होता है ना। एयरलाइंस की बात करें, टिकट रिजर्वेशंस जो हम करते हैं, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशंस करते हैं, तब भी आपको नेटवर्किंग चाहिए होता है। तो दीज आर द मेजर एरियाज जहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग जो हम यूज कर सकते हैं, वेदर इट बी अ बैंकिंग सेक्टर, वेदर इट बी एजुकेशन सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर, एयरलाइंस इंडस्ट्री, टिकट रिजर्वेशन। ये बहुत कम मैंने मेंशन किए हैं, आप और भी ज्यादा लिख सकते हैं, बिकॉज अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है नेटवर्किंग का तो you can easily write more and more applications of this computer network। So now let's move forward towards internet। internet क्या होता है, you have heard it a lot, you are using that a lot, है ना। तो what actually internet is? So see, इंटरनेट को हम यूजुअली क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नेट, राइट। इंटरनेट और नेट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मतलब हमने अभी क्या डिस्कस किया था, कंप्यूटर नेटवर्क की, हम डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। पर उसका नेटवर्क का भी नेटवर्क, देर आर सर्टेन कंप्यूटर नेटवर्क्स एक तरीके से देखो, और उन नेटवर्क को भी वो कनेक्ट कर रहा हो। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इंटरनेट, दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स। मतलब हमारे दुनिया जहान में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, अगर हम हर एक डिवाइस कंप्यूटर को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो दैट इज योर इंटरनेट, जो नेटवर्क का भी नेटवर्क है। ठीक है, तो the word internet comes from the combination of two words, first is your interconnection and second is your network। network we have all studied earlier, और interconnection हमें पता ही है कि कुछ पार्ट हम क्या कर रहे हैं, we are interconnecting them। तो this is what your internet is। so network is a collection of computers and devices connected via communication channels and transmission medias। तो कम्युनिकेशन चैनल्स आपने हमारे देखे हैं, हमने इससे पहले कम्युनिकेशन चैनल्स की
बात की है। ट्रांसमिशन मीडिया भी आपने पहले भी पढ़ा होगा। सो ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी, और हम वायर्ड मीडियम के थ्रू कनेक्ट हो कर सकते हैं, हम वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लैन वायर यूज करते हैं, ठीक है, लैन वायर हमने यूज किया, दैट इज अ वायर्ड मीडियम जिसके थ्रू डिवाइस कनेक्ट करते हैं। एक हो गया हमारा वायरलेस मीडियम जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर नेटवर्क इज, है ना। फिर आती है इंटरनेट सर्विसेज। अब इंटरनेट जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या फिर बेसिकली हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारी डेली लाइफ में हम इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं। तो यू ऑल माइट हैव हर्ड अबाउट www, इट्स नथिंग बट वर्ल्ड वाइड web. Might be heard about web page, home page, web publishing, web browsers, सर्च इंजन हो गया हमारा, HTML हो गया, ईमेल हम करते हैं, देयर आर सर्टेन न्यूज ग्रुप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर सकते हैं, टेल नेटवर्क होता है, फोरम, प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, DNS, HTTP। तो अब देखो, इनमें से कई नाम आप लोगों ने सुने भी होंगे, है ना, कई नाम आपने सुने होंगे और कई ऐसे भी नेम्स हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। एंड या ऑफ कोर्स देयर माइट बी नेम्स जो आपने सुने तो हैं पर यू हैव नेवर नोन द मीनिंग ऑफ देम। सो आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें हम बहुत सारी इंटरनेट सर्विसेज डिस्कस करेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। some extra services I will tell you, those are very important, you are using in your day to day life. तो that is all about your internet services। तो अब आगे वाले जितने भी लेक्चर्स अभी हमारे आने वाले हैं, गेस टुडे टुमारो जो हम लेक्चर करेंगे दैट विल बी ऑल अबाउट अवर इंटरनेट सर्विसेज ओनली। ठीक है, तो ये जितनी भी सर्विसेज लिखी हैं इनको हम डिटेल में इन द कमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज सर्विसेज इन detail. So stay tuned for that and watch the next lectures as well. Now अब सी हमने इंटरनेट के बहुत सारी चीज़ों के वी हैव सॉ कि कहाँ कहाँ हमारे इंटरनेट के जो बेसिकली बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या हमारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, क्या क्या हमारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं इंटरनेट के। तो ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें, हमने देखा कि I'm having a device, ठीक है, and I'm having Google Pay in it, for example, and तुम कहीं stuck up हो गए हो, you do not have money at all and you have to come home, ठीक है। So what you'll do, you'll call your parents and say I don't have any money, I have to come to home, they will transfer you the money and you can come back to home। कितना अच्छा है। तो मैम इसमें डिसएडवांटेज क्या है? मीन वाइल दे आर ट्रांसफरिंग द मनी, कोई इंट्रूडर होता है जो इस पैसे को अपने पास में चोरी कर लेता है, यू कांट गेट मनी। सिमिलरली अगर देयर कैन बी सर्टेन लैक्स एंड लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं और वो अगर चोरी कर लिए जाते हैं तो दैट इज अ ड्रॉबैक, बिकॉज इंटरनेट तो एवरीवन कैन यूज, it's not that only you can use, anyone, any person with the wrong intentions can use। ठीक है, there are certain big companies and they are making big projects। तो वो जो प्रोजेक्ट होता है उसको जब हम बना रहे होते हैं, उस प्रोजेक्ट को बनाते टाइम हम उसको लीक आउट नहीं करते, बिकॉज अगर हमने पहले ही लीक कर लिया तो दूसरी कंपनी उस प्रोजेक्ट को बना के पैसे कमा लेगी। तो देयर कैन बी अ थेफ्ट इन दैट प्रोजेक्ट डेटा एज वेल। लोग उस को रिमोट एक्सेस करके कैसे भी करके उस डेटा को भी चुरा सकते हैं। स्पैमिंग, यू कैन सी वेरियस स्पैम मेल्स आपको मिलते हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। मालवेयर थ्रेड्स, आपने कोई वेबसाइट पर आपने क्लिक किया, उसमें से आप मालवेयर को हम इसी अभी समझते हैं वायरस के फॉर्म में, देन वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मालवेयर एंड वायरस इज ऑल्सो इन द कमिंग लेक्चर्स। मैंने किसी भी वेबसाइट पर क्लिक किया एंड दैट वेबसाइट हैज रॉन्ग इंटेंशन, वो कोई ना कोई वायरस आपके कंप्यूटर पर डाल देगी, जिससे वो क्या होगा, आपका कंप्यूटर बंद भी हो सकता है, आपको कंप्यूटर का डेटा भी चोरी हो सकता है, कंप्यूटर के डेटा में एक्सेस भी हो सकता है।
तो दैट इज व्हाट योर मालवेयर थ्रेट्स जो हमेशा आपको रहते हैं। मोर ओवर सोशल आइसोलेशन का खतरा होता है। सोशल आइसोलेशन क्या होता है? लेट मी टेल यू व्हाट अ सोशल आइसोलेशन इज। You are living in your house. There are three members, and every member is busy on their phone. They do not talk to each other. They are busy on their phones. वो अपने फोन ही चलाते रहते हैं, तो क्या हो गया? सोशली दे आर आइसोलेटेड, दे आर ओनली ऑन देयर मोबाइल फोन्स, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड। ओबेसिटी आ जाती है, आप पबजी खेलते रहते हो केवल, ठीक है, बाहर खेलने नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट गो टू प्ले फुटबॉल्स, and you just sit and eat and become fat and give rise to various illnesses, depression, you get frustrated। ज्यादा फोन चलाने से बहुत ज्यादा, अच्छा डू नोटिस दिस थिंग, अब जितना ज्यादा फोन चलाओगे उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, तो दैट लीड्स टू डिप्रेशन बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग लोनली, लगेगा कुछ है ही नहीं दुनिया में, दैट फोन इज द ओनली वर्ड। तो दैट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। So, but we know that every coin has two sides। अगर negative है तो of course positive भी है, that depends on us how we are using it। फायदे क्या क्या हो सकते हैं? Communication is a very beneficial thing। Communication कैसे फायदेमंद है? हम एक जगह से जाकर अपना जो भी डेटा है उसको हम शेयर कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होता तो हम कैसे अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर पाते? किस तरीके से कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है? सपोज दिस इज योर स्कूल, ठीक है, एंड यू आर हियर, एक बच्चा इधर है, ये सबके घर हैं, एंड यू आर हैविंग योर सिस्टम्स। तो यहाँ से क्या होता है? स्कूल इज सेंडिंग यू नोट्स, assignments, similarly notes, assignments, notes, assignments, ठीक है। पर कम्युनिकेशन पॉसिबल है, मतलब टू वे है। असाइनमेंट आप करके सबमिट भी कर सकते हो, यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट, ठीक है, you can submit your assignment and gain marks, you can submit your assignment and gain marks। so this is your communication is where we can send the data as well and where we can receive the data। देन कम्स योर रिसर्च। अब रिसर्च में कैसे यूजफुल है? सपोज कोई इंसान है जो आपका रिसर्च परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसको कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए होंगे, ही नीड एक्सेस टू वेरियस जर्नल्स, ठीक है। अब कई सारे सॉफ्टवेयर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, और आपका जो सिस्टम है इतना कैपेबल नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ डाउनलोड कर सकें। तो व्हाट वी डू इज हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। सो टुडे वी सी वी हैव ऑनलाइन कंपाइलर्स। आप नेट पर जाओगे, आप चेक करोगे, हमारे पास कई सारे ऑनलाइन कंपाइलर हैं, ऑनलाइन इंटरप्रेटर्स हैं। तो इन द कमिंग लेक्चर्स हम जो भी आपका चैप्टर है HTML जब हम पढ़ेंगे, देन वी विल वर्क ऑन द ऑनलाइन पार्ट एज वेल। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी इंस्टॉल, मतलब पाइथन जब हम पढ़ेंगे देन ऑल्सो विल नॉट इंस्टॉल द थिंग्स, विल वर्क ऑन दैट फील्ड ऑनलाइन। तो इस सिमिलरली अगर कोई रिसर्चर है वो भी सारा जो डेटा है वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। एजुकेशन सिस्टम में वी हैव सीन, जैसे अभी हमने देखा असाइनमेंट है, या आई एम टेकिंग हेयर लेक्चर राइट नाउ एंड यू आर कैपेबल टू लिसन टू दैट लेक्चर। वाई एंड हाउ? because I am here, I am having the connectivity of internet, and you are there, you are having the connectivity of internet। तो that is how हमारा जो है एजुकेशन सेक्टर में बेसिकली वी कैन से कि इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आई एम सिटिंग ओवर हेयर, और मैं नेट बैंकिंग के थ्रू कहीं भी अपना डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। दैट इज़ डेटा नहीं, मतलब आपके मनी को मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ठीक है। व्हाट एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग पेटीएम, वी आर यूजिंग गूगल पे, नेट बैंकिंग, फोन पे, मतलब यूपीआई आईडीज जनरेटेड है, एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आर वेरी इजी नाउ अडेज। अपडेट्स
कई सारी अपडेट्स हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ई न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, एंड थ्रू दैट ई न्यूज़पेपर हमने क्या देखा, वी गेट अपडेट अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। हम अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं, अन अकेडमी पे हमने करंट अफेयर्स पढ़े, ठीक है, तो हम अपडेटेड हुए। मोरओवर आपने गूगल न्यूज़ भी सुना होगा, एवरीवन हु इज हैविंग स्मार्टफोन, गूगल न्यूज़ का फैक्टर आता है, तो एज पर योर इंटरेस्ट एरिया वो आपको अपडेट्स देता रहता है, तो यू गेट अपडेटेड टुवर्ड्स लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। आप ऑनलाइन टेलीविजन वॉच कर सकते हैं, आजकल तो सारा कुछ लाइक is online, you have series online, so that is the advantages of internet. So this is a whole wide world जिसमें आपके advantages भी हैं, disadvantages भी हैं, so that depends entirely on you how you are using that particular thing. So today what we discussed was, we discussed the concept of computer network, how we are using it, right? What actually it is, what networking is, what are its uses, उसकी applications कहाँ कहाँ पर use हो सकता है computer network. Then we discussed what? Then we discussed internet. Internet में हमने क्या सीखा? We have learned उसकी services कौन कौन सी होती हैं. अभी services हम डिटेल में coming lectures में पढ़ेंगे. We have learned the pros of internet and we have learned the cons of internet as well. ठीक है, तो अगर इंटरनेट की भी एप्लीकेशन एरियाज पूछेंगे, दे आर मोर ओवर द सेम, बिकॉज अगर इंटरनेट की बात करें तो वो क्या है, नेटवर्क का नेटवर्क है। तो बेसिकली जो काम नेटवर्किंग में हमने पढ़ा है, जितनी एप्लीकेशंस हमने नेटवर्क में डिस्कस की थी, तो वो सारी एप्लीकेशंस आप इसमें पुट ऑन कर सकते हो, है ना। तो दैट इज योर इंटरनेट इज राइट। नेक्स्ट I'll tell you how to join an academy quiz, because to speed up your preparations you have to give quizzes and know how much do you know actually. So first step is search the Academy Learning app in the Google Play Store and download it. Log in the app and select goal. Select the menu button on the top left corner and select plus. Select the label test in the tab at the bottom of the screen. ठीक है, देन क्लिक द ऑप्शन ज्वाइन क्विज एंड एंटर द कोड, जो कोड है वो पुट ऑन करेंगे। देन एडुकेटर एंड होस्ट का वेट करेंगे टू लेट द क्विज गेट ऑन, राइट। सो दैट इज हाउ द स्टेप्स आर टू join an academy quiz. So let's crack CBSE 9th and 10th and subscribe the channel. Click on the bell icon, okay, and like and share. Of course, sharing is caring, so share it, and you can access various PDFs as well, right? So download now the Unacademy app. So till then, have a nice day. Let's crack CBSE 9th and 10th. Thank you. We'll meet tomorrow with new topic.